Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram. Can an average student crack law entrance exam? Can an average student become a good lawyer? Can an average law student get into a good law firm? All these questions are so common. Do you think you are average? Do you think that? Now, guys, welcome to Motivational Pill number 2. Motivational Pill is a series wherein we help you to motivate yourself by solving problems, by finding solutions and having immense faith in yourself. I want to talk about, is there something called average student? Is there something called average person? Yes or no? If you think that you are average, please watch this video, because a lot of you message me that, ma'am, I am an average student. Do you think I can clear so and so exam? Do you think I can get a good job? Can you please tell about a good private college, because I am an average student and I cannot clear any entrance exam. I am average. This is the tag. I feel sad and disheartened. I feel sad and disheartened, my kids, when I read such messages. I seriously feel so bad. Somewhere I can relate to you guys, because somewhere even I used to think I am average when I was your age or a little younger than you. I used to think that I'm average, good for nothing. Now, in this video, I'm going to talk in detail about it. I'm going to tell you that why there's nothing called an average, and this is just something that is in our head. We are going to talk about everything. Please watch this video till the end. Chaliye, let's get into this video. What is the basis? What is the basis on which you are calling yourself an average student or average person? क्या बेसिस है? क्यों? वाई? कभी सोचा है क्यों एवरेज पर्सन बोल रहे हो अपने आप को? वाई? Why? This is the question, right? I have picked up from your answers itself, because मेरे को ये वीडियो करना था. जब भी कोई मुझे बताता था कि मैम आई एम एवरेज, आई यूज टू आस्क दैट पर्सन, why do you think so? And these are your answers, and I'm going to break them down for all of you out there. चलिए. Not understanding certain subjects or something in general, and you say I am an average student. I am average because मुझे एक subject नहीं समझ में आता है, कुछ subjects नहीं समझ में आते. Now, to understand a subject, to develop a skill, I believe that you need to have a right teacher, a good teacher, जिसके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तभी वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगी या पाएंगे. राइट बुक्स. अगर टीचर नहीं भी अच्छी, अगर हमें करेक्ट बुक मिल जाए तो हम खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं. बट जब हम बच्चे होते हैं, जब हम 4th 5th में होते हैं, कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हो रखा है, मुझे एक सब्जेक्ट बहुत पसंद था, बट जैसे ही कोई टीचर आई जो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा पाती थी हम लोगों को, वो सब्जेक्ट में आधी से ज़्यादा क्लास वीक हो गई. आधी से ज़्यादा क्लास. बहुत बच्चों ने ट्यूशन्स रख ली. मुझे ट्यूशन्स पसंद नहीं थी तो मैंने नहीं रखी. तो उस सब्जेक्ट में सीधा डाउनफॉल आया, सीधा डाउनफॉल नीचे. राइट. तो अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एवरेज हो. नेक्स्ट इज, वी लव सम सब्जेक्ट्स एंड वी हेट सम. अब ये तो बहुत कॉमन है. जैसे मुझे इंग्लिश बहुत पसंद था बिकॉज बहुत कम पढ़ना पड़ता था बट मार्क्स बहुत अच्छे आते थे. ठीक है. एसएसटी साइंस बहुत अच्छा लगता था बट मैथ नहीं पसंद था. ठीक है. तो इसका मतलब मैं एवरेज? मैं ये सोचती थी कि क्योंकि मैथ में अच्छी नहीं हूँ तो एवरेज हूँ. अगर मैथ में अच्छी होती तो एवरेज नहीं होती. ऐसा नहीं है. दिमाग तो चलता है. हर किसी का किसी ना किसी चीज में दिमाग चलता है. सो यू आर नॉट एवरेज.
ऑन द बेसिस कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आते, यू नेवर पेड अटेंशन और गिव प्रेफरेंस टू स्टडीज। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी स्टडीज को, आपको लगा ठीक है जितना होता है हो जाए, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी ही नहीं स्टडीज को। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको वैल्यू नहीं पता चलती। जब पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उनको लगता है कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। बट इवेंचुअली बहुत बच्चे, तभी आपने देखा है बहुत बच्चे 10th+2 तक कुछ नहीं कर पाते हैं, 12th के बाद भी नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे, बट कॉलेज के बाद वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि यार कुछ करना है लाइफ में, तो कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसे पढ़ना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है। तो बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कॉलेज के बाद, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कॉलेज के बाद फ्लरिश करते हैं, बिकॉज ये नहीं कॉलेज के बाद उनको कुछ मिल गया, ऐसा नहीं। उनको पता चल गया, वैल्यू पता चल गई पढ़ाई की या किसी स्किल की जिसमें उन्होंने मेहनत करी, एंड फिर वो चढ़ गए अपनी लाइफ में, ऊपर चले गए बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता नहीं चलता, हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता। तो अभी तक मैंने अटेंशन ही नहीं पे करी है, मे बी आपने ना करी हो, तो यू आर नॉट एवरेज, इट इज जस्ट दैट यू हैव नॉट फोकस्ड, you have not focused, you weren't aware that how one needs to study a subject। बहुत सारे लोगों को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हमने लॉ स्टूडेंट्स कैसे पढ़ना चाहिए उनको, लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स वाली सीरीज करी, तो बहुत लोगों के ईमेल्स आए कि हमें पता चल गया कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब क्या था, वो उन्होंने लॉ एज अ सब्जेक्ट लिया, उनको अच्छा लगा, बट जब पढ़ना पड़ा फुल फ्लेज्ड तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कैसे पढ़ना। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कैसे पढ़ना है। जब बता दिया कैसे पढ़ना है तो सबको समझ में आने लग गया। तो इसका मतलब क्या है, हमें स्कूल्स में, हमारी स्कूलिंग, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कोई हमें बस पढ़ाते रहते हैं, ये नहीं बताते कैसे क्या करना है। बहुत कम टीचर्स हैं, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, अपना सिलेबस खत्म करेंगी, एंड दैट्स इट। कोई टीचर हमें ये नहीं बताता कि लिखना कैसे है पेपर में, याद कैसे कर सकते हैं, कोई नहीं बताता, राइट। नॉट स्कोरिंग वेल इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ओवरऑल, मे बी आपका सब्जेक्ट का लोचा नहीं था, ओवरऑल ही परसेंटेज अच्छी नहीं थी। देखो हमारे यहाँ सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं, मे बी आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा था, आपको समझ में आ रहा था, बट जब राइटिंग पे आता था यू वर नॉट एबल टू राइट। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, या आपकी स्पीड इतनी थी नहीं थी राइटिंग की, आप एग्जाम नहीं खत्म कर पाते थे अपना। आई रिमेंबर, ये तो मेरे आंखों देखी बात है, मेरे साथ एक स्टूडेंट होता था, वो बेचारा सब कुछ पढ़कर आता था, बट उसका एग्जाम नहीं कंप्लीट होता था, उसकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी, एग्जाम नहीं कंप्लीट हो पाता, बहुत बेचारा नीटली लिखता था एग्जाम में, और हम गन मन डालकर आ जाते थे, हमारा एग्जाम कंप्लीट हो जाता था, उसका नहीं होता था। तो एक दिन वो रोता हुआ बाहर गया, एंड बाई चांस मेरी मदर भी लेने आई हुई थी, उसकी मदर भी लेने आई हुई थी, एंड उसने अपनी मदर को रोते हुए बोला कि आज भी मेरा एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसकी मदर ने बोला कि इसका सोल्यूशन है, अगर तुम घर पे प्रैक्टिस करने लग जाओ, लिख कर देखने लग जाओ, और स्पीड बनाओ, तो तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। तो ऑब्वियसली अगले एग्जाम में दोबारा उसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ, बट जब फाइनल एग्जाम्स हुए ना, तो उस बच्चे की स्पीड इतनी बन गई कि उसके एग्जाम्स फिनिश होने लग गए। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली एक वो एवरेज था नहीं, एक प्रॉब्लम थी जिसका उसने सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो ऐसे ही कोई भी एवरेज नहीं होता। तो क्या हम इस स्टूडेंट को एवरेज बुला सकते हैं जिसका पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था उसके मार्क्स कम आ रहे थे? नहीं, नहीं, देयर वाज अ प्रॉब्लम जिसका उसको सोल्यूशन मिल गया। और जब हम स्कूल में होते हैं तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम पता है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है ना? ये मत कहो, अपने आप को ये मत बोलो दैट आई एम एवरेज। कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढो। स्टूड द सब्जेक्ट बट कुडंट मग अप थिंग्स, बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको चीज़ें रट्टा नहीं मारा जाता, उनसे बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ उनको याद करने को दे दो उनसे लर्न नहीं होती, मेरे से नहीं होती थी। तो मेरी मम्मा ने बोला लिख लिख कर याद करना है, जो भी याद करना है लिख लिख कर याद करना है, वही मैं आप लोगों को बोलती हूँ। ठीक है, लिख लिख कर याद करना है, तब जाके मुझे याद होता था। didn't know how to attempt question paper, how to write answers, guys। ये तो मैंने अपने इवन कॉलेज में भी बहुत बच्चे देखे जिनको आंसर्स लिखने नहीं आते थे।
तभी मैंने वीडियो मैं करती हूँ ना, हाउ टू राइट आंसर्स। इवन अगर आप स्कूल में आप वो वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, पता चलेगा कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, स्पेशली थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाले आंसर्स होते हैं। बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे लिखने चाहिए। क्यों क्यों क्योंकि हमें नहीं सिखाया जाता, कोई टीचर इतना पेन ही नहीं लेता है या लेती है कि हमें बताएं कि बेटा ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। नॉट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत बच्चों को लगता है दैट दिस इज गॉड गिफ्टेड। एक ये फ्रेज बहुत ही कॉमन है पेरेंट्स के अंदर भी, गॉड गिफ्टेड। जी उनका बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है, 10 घंटे तक पढ़ता है, दैट चाइल्ड इज गॉड गिफ्टेड बिकॉज ही और शी कैन स्टडी फॉर 10 hours। दैट इज वॉट पेरेंट्स से और एनी वन एल्स सेज। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये कुछ नहीं है। इट इज अ स्किल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, इट इज अ हैबिट विच कैन बी टॉट, it is a self-taught habit. Such kind of students know the importance of studying. उनके ड्रीम्स उनके पर्पस इतने बड़े होते हैं कि वो कहते हैं पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं आदत थी बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ने की, इतनी मेहनत करने की जितनी लॉ स्कूल में करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ का तो इन्वायरमेंट ही ऐसा था, कॉम्पिटिटिव, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो पढ़ना पड़ा क्योंकि पर्पस क्या था, हर चीज़ में फ्लरिश करना है, तो हर चीज़ में फ्लरिश करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो दिस इज सेल्फ टॉट। अगर मैं कर सकती हूँ तुम भी कर सकते हो। कैन बी टॉट एट एनी एज, कैन बी टॉट एट एनी एज। ये नहीं कह सकते जी मैं तो 40 ईयर का लॉयर हूँ, मैं नहीं अपने आप को बिठा सकता। हर कोई बिठा सकता है। ये जो ब्रेन है ना, इसके साथ बातें करनी पड़ती है, इसको बोलना पड़ता है कि भाई करना पड़ेगा। ओके, हैव नॉट डन एनीथिंग वर्थ अप्रिसिएशन एज सच। आप कह रहे हो कि मैंने कुछ भी बहुत बड़ा नहीं किया, हैव नॉट डन एनीथिंग ग्रेट इन माई लाइफ। यू कैन डू एनीथिंग ग्रेट एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, ठीक है ना। उसके लिए यू नीड टू टेल योर सेल्फ अगेन, कभी गोल ही नहीं सेट किया, गोल ही नहीं सेट किया होगा, ठीक है। इवन इफ यू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन एंड देन इम्प्रूव, पार्टिसिपेट करा, ठीक है, फिर आपने इम्प्रूव किया उसमें और फिर यू वन दैट कॉम्पिटिशन या कुछ सीखा, ठीक है। आपने कुछ भी ग्रेट किया ही नहीं, कभी कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एग्जाम्स में भी अच्छे स्कोरिंग नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी कुछ नहीं किया, तो कुछ किया ही नहीं है, तो यू थिंक यू आर एवरेज। वो एवरेज इसलिए हो बिकॉज आपने कभी सोचा नहीं। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन जीतना है, तो फिर जीत जाओगे। जिस दिन सोच लिया उस दिन 50% जॉब डन है, 50% बाकी सारा का रह जाएगा। जब तक हम अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट नहीं करते, फोकस ऑन योर गोल्स, पुट योर फोकस ऑन गोल्स दैट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर। वी डू नॉट गिव अटेंशन, वी स्टे इन आवर पास्ट, हम अपने पास्ट में रहते हैं। आई यूज टू टेल माई सेल्फ, 10th से पहले पहले मैं अपने आप को यही बोलती थी, आई एम एवरेज, मैं मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बनेगा, आई कैन नॉट डू एनी थिंग। बट उसके बाद बहुत कुछ हुआ 10th के अंदर ही, दैट आई वॉज फोर्स्ड टू स्टडी, आई वॉज फोर्स्ड, आई वॉज चैलेंज्ड, मुझे चैलेंज दिया गया था एंड आई स्टडीड, स्टडीड एंड स्टडीड। तब क्या हुआ, कहाँ गया वो एवरेजपन, कहाँ गया, बस वो एक सोच थी, इट वॉज अ थॉट, इट वॉज अ थॉट। तो बच्चों आप गलत नहीं हो, इट इज जस्ट दैट किसी ने उस थॉट को अटैक नहीं किया है अभी तक, पर मैं करूंगी अटैक, क्योंकि तुम में से कोई भी एवरेज नहीं है, सब बहुत अच्छा कर सकते हो। वॉज नॉट एबल टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जाम और गेट एडमिशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अब बहुत बच्चे हैं, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि क्लैट, DU या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JEE या कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बिकॉज नॉट वॉज नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज और ड्रीम कॉलेज, आई एम एवरेज। यार कुछ एवरेज नहीं होता है, ठीक है ना। जिस दिन तुमने सोच लिया तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तुम अचीव कर सकते हो। और एक कॉलेज की बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैंने इतने ऑफिसेस में काम कर लिया, इतने सारे लोगों के साथ काम कर लिया जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से आए हुए हैं, and I've realized one thing, it is not your college, it is not your college. Students from best colleges are not able to do well when it comes to their jobs. Students from okay colleges, या यहाँ पे हम average कह रहे हैं, तो जो average या below average colleges भी होते हैं उनमें से आते हैं और वो इतना अच्छा काम करते हैं, they do such good work. It is not your college,
इट इज़ नॉट योर कॉलेज। हाँ, अगर अच्छे कॉलेज में आते हो, वहाँ से पढ़ते हो, तो थिंग्स गेट ईजियर फॉर यू, बट इट इज़ नॉट योर कॉलेज। आपकी कॉलेज आपका डेस्टिनी नहीं डिसाइड करते, इट इज़ यू एंड योर वर्क, हार्ड वर्क विच इज़ गोइंग टू डिसाइड। क्या करते हो तुम वो 3 4 5 सालों में, जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो यू आर नॉट एवरेज, अगेन योर सोच, ये जो थिंकिंग है ये एवरेज है। पीपल टेल यू दैट यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। अब आप कहते हो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरी ये है कि मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली के अंदर, मे बी इट कुड बी योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स or anyone else, any other person is telling you or tells you almost every day that you are average because of any XYZ reasons. XYZ reason की वजह से या ऐसे ही बोलते हैं that you are average. मुझे बोलते थे बहुत बच्चे you are average. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला, मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला. They used to praise me for every little achievement. They used to, for me they were little, but when I grew up, I got to know that they were not little achievements. So that is why they used to praise me. मुझे लगता था बिकॉज मैं वो अचीव कर रही थी, तो मुझे लग रहा था क्या ही है, मतलब आई हैव टू डू अ लॉट इन माई लाइफ. आई वॉज सो हंग्री फॉर अचीविंग थिंग्स. मतलब स्टडीज में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, आई वॉन्टेड टू अचीव सो मच उस फ्रंट पे. ठीक है ना. और मेरे पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को भी लगता था यार कितना अचीव कर रही है लाइफ में, और मुझे लगता था नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं स्टडीज़ में नहीं कर पा रही हूँ तो नहीं, इतना अच्छा नहीं. उसने भी मुझे और आगे जाना है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी. तो बट जो आस पड़ोस के लोग थे या रिलेटिव्स थे, वो कहते थे एवरेज. वो कहते थे, क्या कहते थे? एवरेज. ठीक है, वो तो टाइटल दिया हुआ था एवरेज का. तो फिर देखो यार, तुम्हारे रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हार्डली मैटर्स. मेरे ख्याल से लाइफ में जो मैटर करती है ना, वो है फैमिली. थोड़ा डार्क कर देती हूँ बिकॉज ये बहुत मैटर करते हैं. फैमिली, तुम्हारी फैमिली में से अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है, तो वो भी मैटर नहीं करने चाहिए, बिकॉज तुम अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पाओगे. फिर अगर तुम्हारी मदर उठ के बोल रही है ना दैट यू आर एवरेज, इफ एनी मदर इज हियरिंग दिस, तो मैम मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, या फादर सुन रहे हैं, सर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चे को एवरेज, डफर, डम ये मत बोलिए. बिकॉज हम नॉर्मली बोलते हैं अपने बच्चों को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इट हिट्स उनके डायरेक्ट लगता है ये. बिकॉज हम उनके हीरोज़ हैं, हम उनके मेंटर्स हैं, हीरोज़ हैं. अगर हम ही उनको कह देंगे ना कि भाई तू एवरेज है, तो ख़त्म स्टोरी. एंड जो बच्चे ये सुन रहे हैं यार, इट्स ओके, लेट देम टेल, चैलेंज में ले लो. ये मुझे एवरेज बोल रहे हैं ना, इनको तो मैं दिखाती हूँ मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी. आई एम नॉट एवरेज. आई एम नॉट एवरेज. इट इज़ नॉट योर स्कोर इन 10th or 12th which decides that you are average. You are not average. So it is basically we or someone from outside who is telling us that I'm average. या तो मैं ही बता रही हूँ, और बाहर का बंदा क्या बोल रहा है hardly matters. जब हम, what are we telling ourselves? What are we telling ourselves? If we tell ourselves that I am average, तो पक्का हो गया ना, belief करूँगा मैं. It is a belief that I am average. When we behave like an average student, हम क्या करते हैं, हमने बोल दिया अपने आप को that I am average, बोल दिया एवरेज. ठीक है ना, तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन हो गया. एवरेज, मैंने अपने आप को बोला आई एम एवरेज इज इक्वल टू, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आई एम एवरेज. आई एम एवरेज, तो मुझे टॉपिक नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं तो एवरेज हूँ. इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली तो हमने ये नहीं कहना चलो अब मैं और मेहनत करके कुछ अचीव करने की कोशिश करती हूँ. नहीं, आई एम एवरेज. जॉब भी एवरेज ही लगेगा, कुछ भी करूँगी तो एवरेज ही होगा, बिकॉज आई एम एवरेज. कोई टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश नहीं करोगे, अपने आप को बोले आई एम एवरेज, आई एम एवरेज. एक्सक्यूज दे दिया, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल जोन में बैठ गए. कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को फोर्स नहीं करोगे समझने के लिए. क्या बोलोगे? आई एम एवरेज. एवरेज को तो समझ में नहीं आ सकता. वी स्टार्ट बिहेविंग
लाइक एन एवरेज, बिकॉज डिफाइन किया हुआ है सोसाइटी ने एवरेज बच्चे को, डिफाइन किया हुआ है ना, डिफाइन किया हुआ है ना। एक एग्जांपल देती हूँ, यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस बनने के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आईएएस का एग्जाम का ही है ना, यूपीएससी का। उसमें अगर आप बच्चे उठाकर देखो, बहुत बच्चे 10th 12th कॉलेज के अंदर 45-50%, इससे ज्यादा नहीं, 45-50% बस। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर गए। क्यों यूपीएससी क्लियर कर गए? बिकॉज दिमाग में आ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो अगर वो सोसाइटी ने जो एवरेज डिफाइन किया था उसको ब्रेक कर कर कुछ बन सकते हैं, तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? So stop telling yourself that you are average. You are not average. You are not average. It is just that you do not want to leave your comfort zone. You do not want to do things that take an effort. You cannot tell yourself that you are an average student, because there is nothing called average. There is nothing called average, my friend. It is just a societal definition given to this word, which you carry as a badge, which you are carrying as a badge, and it is your mistake. तो ये चीज पे आज रात सोने से पहले जरूर सोचना कि क्यों तुम अपने आप को एवरेज बोल रहे हो, ठीक है ना। और अगर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करनी है, कमेंट सेक्शन में करना। इस वीडियो के हर कमेंट का रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगी। एंड अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिफाइन कर रहे हो अपने आप को एज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं बताऊंगी कि तुम नहीं हो, मैं प्रूव कर सकती हूँ। दैट इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू। So guys, that's it for today's video. Logiri signing off. I'll see you in the next video super soon. And अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद हैं और अगर आप कोई और प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। आई वुड लव टू डिस्कस सच इश्यूज, क्योंकि सोल्यूशन तो ढूंढना ही है ना यार, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ज़िंदगी में। बहुत ग्रेट थिंग्स करनी है हमें ज़िंदगी में, ग्रेट, ठीक है ना। लॉन्गिरियन हो, बहुत बड़ा अचीव करना है कुछ, ठीक है। ओके, बाय कीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।